everyone, good morning to all my students of class 11th. Today we will be starting the topic Protista, which is actually the second kingdom of the five kingdom division of classification. So first of all, some basic points we need to remember about this Protista. So the first thing is that Protista consists of all eukaryotic organisms. All the organisms which are in the Protista have a eukaryotic cell, that is, they will have a well-defined nucleus, first of all. And all the organisms will be, very vital point, they will all be unicellular. That means they will be composed of a single cell. Now, the kingdom Protista gets into a very complex kind of a kingdom due to the presence of both photosynthetic and non-photosynthetic organisms. So what do we mean by this line? Photosynthetic means the organisms will be generally autotrophs. So it will be showing autotrophic mode of nutrition. Some organisms, those who will carry on the process of photosynthesis, they will be autotrophic organisms, and those organisms in which photosynthesis does not occur, they will be having heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition. So this kind of a mode of nutrition brings complexity in the kingdom of Protista. Okay, so now let us have a look that what are the different organisms or groups, subgroups which are included in Protista, and those groups we will be studying one after the other. So first of all, Protista will include what it is known as the chrysophytes. Then we will be studying about the dinoflagellates. Next we will be having euglenoids. Then the slime molds. And finally we will be studying about protozoa. Okay, so in kingdom Protista we will be having the groups, that is the chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and finally we will be studying about protozoa. Now see, all these organisms were kept in other kind of kingdoms before the discovery of the kingdom Protista. That means, like chrysophytes and dinoflagellates, they are generally photosynthetic in nature. So obviously they were clubbed together and kept inside the plant kingdom. We have the euglena. It has a mixotropic mode of nutrition. We will be discussing it when we will be coming to further. Slime molds contains heterotrophic mode of nutrition, and that too, like the saprophytes. So this was included inside the fungi. Okay, and finally the protozoa, they are generally either predatorious or they are parasitic in nature. Therefore, no autotrophic mode of nutrition is found over here. They are all generally heterotrophs, and therefore they are generally animal-like. They were placed inside the animal kingdom. Okay, so we will be talking about rather this one, plant-like organisms. Plant-like. This is your fungi-like, and this is your animal-like. Okay, so before the discovery of the Protista, they were all clubbed together and kept in this
respective kingdoms. But after the discovery of the protista, they being the unicellular eukaryotic organisms which show आपके ऑटोट्रॉपिक भी और कभी कभार हेट्रोट्रॉपिक भी वो शो करते हैं, एंड देयरफॉर दे आर नाउ क्लब टुगेदर एंड पुट अंडर प्रोटिस्टा. क्लियर? सो अब हम लोग देखेंगे, हम लोग एक एक को अब लेके बात करेंगे कि व्हाट इज क्राइजोफाइट्स, उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम लोग, और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सारा चीज देखेंगे. चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ग्रुप, दैट इज द क्राइजोफाइट्स. First of all, we have to see that all the chrysophytes which are staying, they all dwell, or rather their habitat is purely aquatic. They are all aquatic protistans. Okay? And they have a body form in the shape of a soap box. What is a soap box? साबुनदानी हम लोग देखते हैं कि एक ऊपर कवर होता है और एक नीचे कवर होता है. तो जस्ट इफ आई टेक दिस इज योर अपर बॉक्स एंड दिस इज द लोअर बॉक्स, ठीक ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है क्राइजोफाइट्स के. एंड ये जो आपके बॉक्सेस है, ये बहुत ही हार्ड एक मटेरियल से बना हुआ है, सच दैट दे आर indestructible in nature. ये सारे के सारे कैसा बन रहा है? ये सारे के सारे indestructible in nature बन रहा है. अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है इस हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर. और जनरली ये जो स्ट्रक्चर है, ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है सिलिका से, सिलिकेटेड प्लेट से आपके ये बना हुआ है. ठीक, जो आपके ये बॉक्सेस है, और इस बॉक्स के अंदर आपका ये लिविंग क्राइजोफाइट्स रहता है. ठीक, अब जब ये आपका डेथ हो जाएगा इस ऑर्गेनिज्म का, सो द डेड विल बी मूविंग आउट, और जो बचा रह जाएगा, क्योंकि ये इंडेस्ट्रक्टिबल है, तो सिर्फ और सिर्फ ये दो आपके बॉक्सेस या प्लेट्स बचे रहेंगे. ठीक, तो बिकॉज दे आर ऑल माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, दे विल बी ऑल सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, either bottom of a pond or bottom of the river or bottom of the ocean. जनरली मेरीन में आपके पाए जाते हैं, तो ओशन के आपके नीचे ये भरपूर मात्रा में आपका पाया जाएगा. ठीक, और यही चीज के लिए जब ये खत्म हो जाता है, दे आर नोन एज द डाइएटोमोशियस अर्थ. ठीक है, क्लियर? तो ये जो हमें कोई भी रिवर बेड या ओशन बेड के नीचे ये जो चमकता हुआ आपके सरफेस मिलता है, द सी बेड इफ आई टॉक अबाउट, ठीक है, तो एक्चुअली दैट इज मेड अप ऑफ माइन्यूट, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ माइन्यूट दिस इंडेस्ट्रक्टिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्राइजोफाइट्स. क्लियर है? और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ पार्ट विच फॉर्म्स द डाइएटोमोशियस अर्थ. ठीक है, ये जो पोर्शन है, इसी को हम लोग लेके इस्तेमाल करते हैं इन फिल्ट्रेशन. डिफरेंट फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. नीट में भी क्वेश्चन आया है ये काफी बार. और इसको शू पॉलिशिंग के अंदर जो क्रीम्स वगैरह बनते हैं शू पॉलिशिंग का, बिकॉज इसका जो डाइएटोमोसियस जो आपका स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही ग्रिटी नेचर हो जाता है इसका. इट हैज गॉट अ वेरी ग्रिटी नेचर, एंड ड्यू टू दैट ग्रिटी नेचर this is used in the filtration purposes. These are used in the shoe polishing natures and vice versa. ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक चीज और हमें जानना है, ये जितने भी क्राइजोफाइट्स है, दे आर ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. दे आर ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, और फोटोसिंथेसिस इस माध्यम में करता है जिसके वजह से ये भरपूर रहता है कहां पे? मेरीन एनवायरमेंट में. तो दे फॉर्म द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस. ठीक है, ओशंस का चीफ प्रोड्यूसर्स बनता है आपके ये क्राइजोफाइट्स. कोई दिक्कत? क्लियर है?
इसके आपके एग्जांपल्स क्या क्या हिसाब से हम लोग जानते हैं ना। इस क्राइजोफाइट्स के अंदर जो रहता है दैट इज द डाई एटम्स, जिसको हम लोग डेस्मिड्स नाम से भी जानेंगे, और इसको कभी कभार गोल्डन ब्राउन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप जो है दैट इज योर क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स कहां पे रहते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ देयर हैबिटेट, दे आर ऑल एक्वेटिक इन नेचर, मतलब पानी के अंदर पाया जाता है, मेनली मेरीन वाटर, खारे पानी में। जो बॉडी फॉर्म है वो उसका क्या आपका शेप है, इन द शेप ऑफ अ सोप बॉक्स, जिसके आपके एक आउटर कवर होगा, एक इनर कवर होगा, और इन दोनों कवर के बीच आपका रहता है द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सोप बॉक्स किससे बना हुआ है ना, हार्ड सिलिका प्लेट्स से बना हुआ है, जिसके वजह से ये बहुत ही ज्यादा हार्ड बन जाता है एंड इट इज एक्चुअली इनडेस्ट्रक्टिबल इन नेचर। क्लियर है। सो आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कम्स आउट, रह जाता है आपका ये जो इंडेस्ट्रक्टिबल आपके सिलिका प्लेट्स है, वो क्योंकि थोड़ा सा भारी होता है तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन होता है, और इट फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सी बेड और द रिवर बेड, जिसको हम लोग नाम देते हैं डाईएटमोशियस अर्थ। क्लियर है। क्योंकि ये सारे फोटोसिंथेटिक इन नेचर है एंड देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। क्लियर। ठीक। आफ्टर दैट ये जो डाईएटमोशियस अर्थ आपका बन रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्लेट्स ना, क्योंकि ये बहुत ही ग्रिटी दानेदार आपका नेचर का होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहां का इस्तेमाल करते हैं, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक। और आपके शू पॉलिशिंग या पॉलिश जो आपके एजेंट्स होते हैं उसमें भी आपके ये नजर आता है। ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मल किस नाम से जानते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज डाईएटम्स विच आर कॉमनली नोन एज डेस्मिड्स, देन ऑल्सो द गोल्डन ब्राउन एल्गी। कोई दिक्कत। क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड to the next group, that is the dinoflagellates. So we can discuss about the dinoflagellates over here. Dinoflagellates. तो dinoflagellates के बारे में हमें सबसे पहले जो जानना पड़ेगा, as the name suggests, these organisms contains of two flagella. ठीक है। ये जो आपके ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर कितने फ्लैजेला है, देयर आर 2 फ्लैजेला विच आर प्रेजेंट। ठीक। और ये फ्लैजेला कहां पर रहता है ना, ये जो फ्लैजेला होता है, अगर मैं बोलूं दिस डाइनोफ्लैजेलेट इज मेड अप ऑफ हार्ड सेल्यूलोजिक प्लेट्स। ठीक। और जैसे आपके ऊपर और नीचे में होता है, तो एक जो फ्लैजेला होगा दैट विल बी आपका लॉन्जिट्यूडिनल, मतलब एक तो ऊपर से है, और ये जो दोनों में एक आपका ग्रूव बन रहा है, ये जो एक गड्ढा टाइप बन रहा है दोनों जगह, इस गड्ढे के यहां पर भी एक आपका द फ्लैजेला इज प्रेजेंट। तो इस फ्लैजेला को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स फ्लैजेला। क्लियर है। तो 2 फ्लैजेला है, एक तो होगा लॉन्जिट्यूडिनल इधर ऊपर से या नीचे से, एक हो जाएगा जो ग्रूव है इन दोनों के बीच, उन ग्रूव के अंदर रहता है आपका द ट्रांसवर्स फ्लैजेला। और इसी ट्रांसवर्स फ्लैजेला को कभी कभार व्हर्लिंग व्हिप का नाम भी दिया जाता है। व्हिप का मतलब होता है चाबुक, व्हर्लिंग मतलब जो घूम के है आपके। ठीक है। तो ये जो आपका ट्रांसवर्स है ये एक्चुअली जनरली मेकिंग अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, जहां पे आपका ये डाइनोफ्लैजेलेट्स है, ये ऊपर वाला वॉल और नीचे वाला वॉल, तो इनके चारों तरफ ऐसे करके घूम के आपका ये पकड़ के रखा हुआ है द ट्रांसवर्स फ्लैजेला। और क्या जानना है हमें, दे आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक इन नेचर। सिंथेटिक इन नेचर। क्लियर है। नेक्स्ट हमें जानना है कि इसके जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर कई सारे ऐसे आपके हार्ड और स्टिफ प्लेट्स बना हुआ है, जिस प्लेट्स को हम लोग नाम देते हैं कंसिस्ट ऑफ हार्ड सेल्यूलोज प्लेट्स। ठीक है। तो द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज लाइक हार्ड प्लेट्स। ठीक है।
हमें एग्जाम्पल के तौर में जो मेन एग्जाम्पल है इसके अंदर हमें याद रखना पड़ेगा गोनी आउलैक्स। दिस इज अ साइंटिफिक नेम। और ये गोनी आउलैक्स करता क्या है ना, इट इज अ डाइनोफ्लैजेलाइट विच रहता है एक दूसरे के साथ झुंड में, और झुंड में रह के जब ये आपके सी वाटर के ऊपर से आता है तो दे प्रोड्यूस अ पिगमेंट, अ रेड कलर पिगमेंट, ठीक, एंड देयरफॉर दे कॉज रेड टाइड। क्या बोल सकते हैं हम लोग, दे कॉज रेड टाइड। So they cause red tide, ठीक है। तो जनरली व्हेन दे कम इन टोटल कॉलोनी फॉर्म, और जैसे कि आपके ऊपर से लहर आता है बिकॉज ऑफ द रिलीजिंग ऑफ दैट केमिकल, ठीक है, वो दूर से अपीयर होता है एज कि एक लाल कलर का लहर आपका खींचा हुआ किनारे की तरफ आ रहा है। तो विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द रेड टाइड, दैट इज द गोनी आउलैक्स। एंड गोनी आउलैक्स किसके अंदर होता है, इट कम्स अंडर द डाइनोफ्लैजेलेट्स। तो डाइनोफ्लैजेलेट्स क्या है ना, बॉडी का स्ट्रक्चर ऊपर और नीचे दो प्लेट्स हैं जिनके बीच एक ग्रूव आकार में होगा। तो उसके ऊपर आपके दो फ्लैजेला रहता है, एक फ्लैजेला होगा लॉन्जिट्यूडिनल, दूसरा फ्लैजेला होगा ट्रांसवर्स, ठीक। दे आर ऑल फोटोसिंथेटिक इन नेचर। और ये जो प्लेट्स है, ये प्लेट्स आपके सेल्यूलोज प्लेट्स का बना हुआ रहता है। और हमें एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना पड़ेगा गोनी आउलैक्स विच कॉजेज द रेड टाइड्स। कोई दिक्कत, क्लियर। चलते हैं हमारे द थर्ड जो पोर्शन है, और इस थर्ड पोर्शन को हम लोग नाम देंगे द यूग्लेनॉइड्स, ठीक। यूग्लेनॉइड्स के अंदर सबसे पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। यूग्लेना, ये आपको एक नाम इसके अंदर याद रखना पड़ेगा, ठीक। एंड यूग्लेना इज सच अ ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑर्गेनिज्म बनता है आपके इस प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर। क्यों? बिकॉज सबसे पहले इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब लाइट के प्रेजेंट होता है तब वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सो इट बिहेव्स एज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज इट एक्ट्स एज ऑटोट्रॉफ। बोल सकता हूं, जैसे ही आपका एब्सेंट हो जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक, ये बन जाता है एक प्रीडेटर की तरह, एंड दैट टाइम हेटेरोट्रॉफ की तरह ये बिहेव करता है। मतलब क्या है, जब लाइट रहता है तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। और जब लाइट एब्सेंट रहता है, जब उसको लाइट नहीं मिलता है, तो वो तुरंत प्रीडेटर बन जाता है, शिकारी बन जाता है, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार के और उससे अपना पोषण लेता है, जो कि जिसके वजह से उसको हम लोग हेटेरोट्रॉपिक एनिमल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक। मतलब क्या है, जनरली इस यूग्लेना को, बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म हम लोग इस्तेमाल करेंगे, काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। यूग्लेना जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। किसको कनेक्ट करेगा? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का एक कनेक्टिंग लिंक की तरह बिहेव करता है ये यूग्लेना, जो किसके अंदर आता है, विच प्रोटिस्टेंस, यूग्लेनॉइड्स के अंदर आता है, ठीक है। लास्ट एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा, इसके अंदर भी दो फ्लैजेला होगा बॉडी के अंदर, बट ये जो दो फ्लैजेला होगा, एक फ्लैजेला होगा बहुत ही ज्यादा लंबा, दैट विल बी लॉन्ग, एंड द अदर फ्लैजेला विल बी शॉर्ट, ठीक है। तो क्या क्या देखें हम लोग यूग्लेनॉइड्स के अंदर? यूग्लेनॉइड्स के अंदर जो हमें सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, दैट इज यूग्लेना, ठीक। एंड यूग्लेना इतना कंफ्यूजिंग क्यों होगा? बिकॉज इट विल बी शोइंग मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वाई मिक्सोट्रॉफिक? मतलब डुअल न्यूट्रिशन शो कर रहा है ये।
लाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, बिहेविंग एज अ ऑटोट्रॉफ। लाइट के एब्सेंस में ये एक प्रीडेटर की तरह बिहेव कर रहा है जैसे कि एनिमल करता है, एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर ऑफ लाइट इट शोज मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, समटाइम्स ऑटोट्रोपिक, समटाइम्स हेटेरोट्रॉपिक। अब इसके वजह से, इस एंगल के वजह से इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इट इज मेनली नोन एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिमल किंगडम एंड द प्लांट किंगडम। और यूग्लेगिना के बारे में हमें क्या जानना पड़ेगा ना, इसके अंदर भी दो फ्लैजेला होता है, जैसे कि डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर हम लोग देखे थे, ठीक वैसे इसके अंदर भी दो फ्लैजेला होगा। एक फ्लैजेला होगा बड़ा और दूसरा फ्लैजेला होगा शॉर्ट। कोई दिक्कत? मूविंग ऑन टू द फोर्थ subgroup of the protistans, that will be the slime molds। और मोल्ड्स अब बाद में देखोगे कि मोल्ड्स हमारा कहां पर इस्तेमाल होता है ना, दे ऑल कंसिडर्ड टू बी फंगी। तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स होगा ये भी हो जाएगा फंगी लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये भी हो जाएगा क्या? फंगी लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो फंगी कैसे करके अपने न्यूट्रिशन को लेता है? डेड एंड डिकेइंग से। तो ये भी अपना जो न्यूट्रिशन होगा इट विल शो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक भी कैसा? जनरली इन द फॉर्म ऑफ सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना पोषण को ले सके, वैसा आपका हेटेरोट्रॉपिक सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल बी कैरिड आउट बाय द स्लाइम मोल्ड्स। कोई दिक्कत? स्लाइम मोल्ड्स जो है वो जनरली आपका स्पोर फॉर्मेशन करेगा, जैसे फंगी स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। जब हम लोग किंगडम फंगी की बात करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि फंगी रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन ये भी स्लाइम मोल्ड्स भी करेंगे, ठीक। और करने के बाद कभी कभार अगर काफी सारे ऐसे स्लाइम मोल्ड्स अगर यूनाइट हो जाएगा तो यूनाइट होके ये बहुत ही बड़ा एक स्ट्रक्चर बना सकता है। सो व्हेन ऑल द स्लाइम मोल्ड्स गेट यूनाइटेड टुगेदर, सो यूनाइट करके ये बना सकता है एक स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे प्लाज्मोडियम। रिमेंबर, दिस प्लाज्मोडियम इज नॉट द मैलेरियल पैरासाइट विच कम्स अंडर प्रोटोजोआ। ये प्लाज्मोडियम एक टर्म है, जो टर्म हम लोग देते हैं किसको? जब फंगी एक झुंड में अपना बना लेता है तो दैट कोलोनियल और यूनाइटेड फंगी इज नोन एज गिवन बाय द टर्म प्लाज्मोडियम, ठीक। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या है? दे आर फंगी लाइक प्रोटिस्टेंस, ठीक। क्यों फंगी लाइक? बिकॉज सिंस फंगी आर सैप्रोफाइटिक इन नेचर, दैट इज दे डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म फॉर द न्यूट्रिशन, सच एज जब स्लाइम मोल्ड्स है वो भी आपके ऐसे ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, ये कैसे करके रिप्रोड्यूस करेगा? दे विल बी रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक। और जब यूनाइट हो जाएगा तो यूनाइट होकर वो जो स्ट्रक्चर बनाएगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे प्लाज्मोडियम। कोई दिक्कत? तो ये तो अपना 4 जो है वो प्रोटिस्टेंस खत्म हुए। अब हम लोग जो फाइनल प्रोटिस्टेंस की बात करेंगे, द फाइनल प्रोटिस्टा दैट इज योर प्रोटोजोआ, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसको हमें बहुत अच्छी तरह समझना भी होगा। सो फिफ्थ जो है वो मैं मिडिल में ही लिख रहा हूं, प्रोटोजोआ। अगर इस प्रोटोजोआ टर्म को हम लोग थोड़ा सा अलग करें तो यहां पर हो जाएगा प्रोटोजोआ। प्रो का मतलब है अर्लियर, टू से टू ही करता हूं, अर्लियर टू जोआ। जोआ शब्द का मतलब ही होगा समथिंग रिलेटेड टू द एनिमल्स। तो यहां पे एनिमल किंगडम की बात कर सकता हूं, ठीक, क्योंकि एनिमल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द जू। तो देखो सैप्रोजोइक, अगर मैं बोलूं सैप्रो क्या था? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को जो फीड करता है। जोआ मतलब एनिमल्स विच फीड ऑन
डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक। तो जिसके अंदर आपका जोइक शब्द ऐड हो जाएगा, दे विल बी ऑल रिलेटेड टू द एनिमल लाइक। क्लियर है? तो यहां पर अर्लियर टू द एनिमल किंगडम मतलब पहले, प्रोटिस्टा बनने से पहले ये जितने भी आपके यूनिसेल्युलर एनिमल लाइक यूकैरियोटिक सेल्स थे, जिसको आज हम लोग प्रोटोजोआ जानते हैं, ये प्रोटोजोआ किसके अंदर रखा गया था? एनिमल किंगडम के अंदर रखा गया था, ठीक है। और तब जब आपका प्रोटिस्टा आविष्कार हुआ, यही प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम से अलग करके और फिर इसको अंडर द प्रोटिस्टेंट्स इसको रखा गया है बाय द नेम ऑफ प्रोटोजोआ। क्लियर? इस प्रोटोजोआ के अंदर हम लोगों को जो पढ़ना है वो जनरली 4 अलग अलग सब डिविजन्स के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो होगा दैट विल बी एमीबॉयड प्रोटोजोआंस, ठीक है। एमीबॉयड मतलब ही है द बॉडी स्ट्रक्चर विल बी amoeba like, all these organisms will be amoeba like organisms. So amoeba like, they will be having false feet. जिस false feet को हम लोग क्या नाम देते हैं? Pseudopodia. इसको हम लोग नाम देते हैं Pseudopodia, formation of the false feet. Now one question is there, why there is a need for the formation of this false feet? Now false feet formation इसीलिए जरूरत है so that they can move to their food. अपने खाने तक पहुंचने के लिए उसको मूवमेंट शो करना है, और उस मूवमेंट के लिए वो किसका सहारा लेता है? अपना फॉल्स फीट का सहारा लेता है। ये फॉल्स फीट बनता किससे है? जिस साइड वो मूव करेगा उसी साइड साइटोप्लाज्म ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीम होगा, और साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग होके उसका जो सेल आपका मेम्ब्रेन है वहां पर प्रोजेक्ट होके आपके बाहर चला जाएगा, एंड दे विल बी फॉर्मिंग अ फीट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग नाम देंगे सूडोपोडिया। क्लियर? सो ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर एमीबॉयड प्रोटोजोआंस, जिसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग नाम दे सकते हैं एंटामीबा। ठीक है, क्या एग्जांपल है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो मैं नोट्स में ऑलरेडी आपका मेंशन कर चुका हूं। सो एमीबॉयड हो गया है। एमीबॉयड के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआंस। तो ऑब्वियसली प्रोटोजोआंस कंसिस्टिंग ऑफ अ whip like structure that is consisting of flagella. लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर तो लोकोमोटरी ऑर्गन द फॉल्स फीट सूडोपोडिया, इसके अंदर हो जाएगा फ्लैजेला और द whip like structure. बेस्ट एग्जांपल अगर मैं यहां पर दूं, दैट विल बी ट्राइपनोजोमा। और ये ट्रिप्नोजोमा जो है, ये ट्रिप्नोजोमा क्या करता है? इट कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ये ट्राइपैनोजोमा जो है, ये ट्रिप्नोजोमा या ट्राइपैनोजोमा जो भी आप बोलोगे, ये एक बीमारी पैदा करता है ह्यूमंस के अंदर, दैट इज ऑल्सो नोन एज द स्लीपिंग सिकनेस। ठीक, तो जैसे ही मैलेरियल पैरासाइट होगा, जो कि लेके कौन जाएगा? हु विल बी द वेक्टर, जिसके जरिए मैलेरियल पैरासाइट इन्फेक्टेड से नॉर्मल पर्सन के अंदर जाता है? द एनोफिलस मॉस्क्विटो। ठीक वैसे ही द ऑर्गेनिज्म विच एक्ट्स एज अ वेक्टर इन ट्रांसमिटिंग दिस ट्राइपैनोजोमा फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू द नॉर्मल पर्सन, जो वेक्टर का काम करेगा, उस वेक्टर का नाम याद रखो, द सेसी फ्लाई। एक मक्खी होता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? द सेसी। क्लियर है? टीएसी सेसे फ्लाई भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो एक्चुअली ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये तो एनिमल किंगडम के अंदर होगा, इंसेक्ट होगा तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर होगा। क्लियर? बट ये जो है द ट्रिप्नोजोमा, ये आपका हो जाएगा द फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द सिलिएटेड प्रोटोजोआंस। सो इसका लेकोमेट्री ऑर्गन क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर। मतलब अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ड्रॉ करूं, द एंटायर बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 1000 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स,
जिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम दूंगा, आई कैन नेम देम सीलिया। तो बेस्ट एग्जांपल यहां पर हो जाएगा पैरामेशियम। माइंड द स्पेलिंग ऑफ पैरामेशियम, MOE, क्लियर है। तो ये हो जाएगा मेरा ciliated protozoans। एंड फाइनली वी विल बी हैविंग द स्पोरोजोआंस, ठीक। और ये स्पोरोजोआंस जो है दे विल बी फॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स, और ये स्पोर्स हो जाएगा पैरासाइटिक इन नेचर। मतलब ये जो स्पोर्स है, दिस स्पोरोजोआंस कभी ना कभी अपना एंटायर लाइफ साइकिल के अंदर एक ऐसा स्टेज होगा जब वो क्या फॉर्म करेगा, स्पोर्स फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग स्पोरोजोइट्स भी नाम दे सकते हैं, ठीक। तो इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्पोरोजोइट्स भी नाम दे सकते हैं। तो ये स्पोरोजोइट्स जो होगा दे आर जनरली पैरासाइटिक इन नेचर, ठीक। बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, जिसको हम लोग नाम देते हैं द मैलेरियल पैरासाइट। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, इसको नाम देते हैं मैलेरियल पैरासाइट, ठीक। विच अंडरगोज मल्टीपल फिशन, है ना, मल्टीपल, एक ही सेल मल्टीपल फिशन करके काफी सारे आपके स्पोरोजोइट्स फॉर्म करेगा, और वो स्पोरोजोइट्स इन्फेक्टेड फॉर्म होगा बिकॉज दे विल बी रप्चरिंग द रेड ब्लड सेल्स, और वो आपके मलेरिया पैदा करेगा, ठीक है। ये स्पोरोजोइट्स किसके माध्यम से इन्फेक्टेड से नॉर्मल पर्सन के अंदर जाएगा, द एनोफिलिस मॉस्क्विटो। तो द फीमेल एनोफिलिस बिकम्स द वेक्टर विच ट्रांसमिट्स दिस स्पोरोजोइट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू द नॉर्मल पर्सन, क्लियर। तो चलिए एक बार प्रोटोजोआ को तुरंत देख लेते हैं ना। जितने भी हम लोग प्रोटोजोआ की बात करते हैं, उस प्रोटोजोआ को हम लोग जनरली 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और 4 भी क्या क्या है। सबसे पहले एमीबॉइड, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा वो एमीबा लाइक उसके बॉडी होंगे, ठीक। और एमीबा लाइक बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द फॉल्स फिट और द सूडोपोडिया फॉर्मेशन। फ्लैजेला के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन होगा फ्लैजेला, एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा। सिलिएटेड के अंदर सीलिया विल बी द लोकोमोटरी ऑर्गन, जिसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पैरामेशियम। एंड फाइनली इन स्पोरोजोआंस वी विल बी हैविंग द स्पोर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, एंड जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम, क्लियर है। तो ये ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोटिस्टा अपना कंप्लीट हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे बिफोर गोइंग ऑन टू द फंगी एंड बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑफ द चैप्टर, वी विल बी स्टार्टिंग विद द वायरसेस। हमें वायरस के बारे में पहले जानकारी मिलना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अबाउट द फंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं वायरस को लेकर डिस्कस करूंगा। टिल देन जो मैं नोट्स दूंगा उसको अच्छी तरह देखिए आप, और प्रोटिस्टा को अच्छी तरह कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।